Hello, Alifia Bin. Your voice is not coming clear. Your funny voice is coming like. Oh, funny voice is coming. अभी आ रही है? Yeah. सुनाई दे रही है आवाज? हाँ अभी सुनाई दे रही है. How are you? I'm totally fine. How about you? I'm also good. Good, good. How is the practice? Yes, going good. And I completed the remaining practice which was left yesterday. Told no that please you can complete your practice, so you complete it. So I did it. Very nice, very nice. Yeah. All the practices I completed. How nice. Because I wanted to, I don't wanted to miss it, you know. जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. यस यस. और ज्यादा क्लैरिटी आती जाती है, आंसर्स मिलते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके आंसर्स मिलते हैं. यस. मैंने भी कल बहुत प्रैक्टिस की, जो मेरी थोड़ी सी बाकी थी जर्नलिंग का भी, वो भी मैंने कर लिया. तो every time I do this practice something new comes out. तो बहुत मजा आता है कि कुछ न कुछ नया निकल के आता है. यानी सोचो कितना भरा हुआ होगा हमारे अंदर 30-35 साल से. बाहर जाते रहो. Okay, so yeah, let's start. Okay, let's start our big state programming. Fast. Come on, faster. You are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position. Just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, Let's start. 2, 1, go. Come on, run. Run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, I'm the winner. And you say to yourself, We all are the winners. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Yes. Stop. Thank you. I'm the winner. And now you say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. We all are the winners. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I will. I must.
I can, I will, I must. Thank you, thank you, thank you so much. And just a second. All right, who would like to read today? Can I read only mirror work today? Yeah, sure. So now today we are starting our week 2 and day number 8, Loving Your Inner Child Part 1. तो आज से जो जर्नी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी स्टार्ट होती है, लविंग योर इनर चाइल्ड। तो अब तक हमने जो जो किया, लाइक मैं इनर क्रिटिक को रिलीज़ किया, हमने अपने वो जो 4 दुश्मन थे उसको रिलीज़ किया, बहुत कुछ हमने अब तक किया, राइट। जैसे कि कल की प्रैक्टिस में हमने पूरा रिव्यू किया अपना 1 वीक। तो अब तक हमने इतना अचीव कर लिया होगा कि अभी हमारा इनर चाइल्ड हमारे सामने आएगा मिरर के अंदर। तो अभी आज आपको अपने वो छोटे बच्चे को, जो 3 साल का बच्चा था या 2 साल का या 5 साल का, वो बच्चे को, अपने आप को बच्चे की तरह देखना है और उसको एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है। वो कैसे करेंगे अभी हमें लुइस है बताएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। Let's start. Loving Your Inner Child Part 1. Today you look beyond the others you see in the mirror and meet your inner child. This is a very important day in your mirror work. Take my hand and let's walk over to your mirror. Look deeply into your eyes, look beyond the others, and you see in your mirror and greet your inner child. It doesn't matter how old you are, there is a little child within you who needs love and acceptance. If you are a woman, no matter how self reliant you are, you have a little girl inside who is very tender and needs help. If you are a man, no matter how self confident you have a little boy inside of you who craves warmth and affection. When you look into a हमारे mirror, सबके अंदर इनर चाइल्ड होता है, जो बिल्कुल अलग हमारे जो एडल्ट प्रिटेंड सेल्फ हमने बना दिया है। ये हमारा एडल्ट का जो सेल्फ है वो किस तरह से है, कुछ ना कुछ हमने अपनी एक पर्सनालिटी बना के रखी है। किसी की पर्सनालिटी होगी कि बहुत ही गुस्से वाला पर्सन है, किसी की पर्सनालिटी होगी कि बहुत ही शाई पर्सन है, किसी की होगी कि बहुत ही इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सन है या नाइव पर्सन है। तो ये सब क्या है, हमारा प्रिटेंड सेल्फ है जो हमने एडल्टहुड में एक मुखड़े की तरह पहन लिया। क्यों हमें पहनना पड़ा? कुछ न कुछ दुनिया की वजह से। बट हमारे सभी के अंदर एक छोटा वो बच्चा होता है जिसको वार्मथ एंड अफेक्शन की ज़रूरत होती है, सभी को। वेदर यू आर अ मैन और यू आर अ वुमन, जो भी कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होंगे, तो भी उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा छिपा होता है जिसको बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। लेट्स रीड फर्दर। when you look in the mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? Every age you have been is within you, in your consciousness and your memory. As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. Children develop the idea that if only they could do everything right, then their parents would love them and wouldn't punish them. तो हाँ, कहीं ना कहीं पे समथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू टेंटेड टू बिलीव दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ यू। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, माँ बाप ने कुछ कहा, तो आपको ऐसा बिलीफ होता गया कि नहीं, कहीं ना कहीं पे मैं ही रॉन्ग हूँ, मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है।
अगर माँ बाप ने बोल दिया कि तू, अरे यू स्टूपिड, यू नॉट डूइंग द थिंग्स, तो आपको समझ लगा कि हाँ मैं स्टूपिड हूँगा शायद, मुझे ही नहीं पता है। तो ये धीरे 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 ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, एज ए चाइल्ड तो आप परफेक्ट थे, पर उसके बाद चीज़ें बदलती गई। तो अभी आप देखोगे कि वही चाइल्ड आपके प्यार के लिए कितना तड़प रहा है। तो अभी आज आपको अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना है। और बच्चे कैसे होते हैं कि भाई पेरेंट्स उसको पनिश ना करे, उनको प्यार करे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होते। सो लेट्स रीड फर्दर। Often we turn off or tune out around the age of 5. We make the decision because we think there is something wrong with us and we are not going to have anything to do with this child anymore. There is a parent in there is a parent inside of us as well. And for most of us, this inner parent is scolding the inner child almost non-stop. If you listen to your inner dialogue, you can hear the scolding. You can hear the parent tell you what you are doing wrong and that you are not good enough. तो आप ही फिर अपने आप के पेरेंट बन जाते हो और पूरा इनर चाइल्ड को ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। अभी हमने देखा हमारा खुद का सेल्फ टॉक, हमने कुछ ना कुछ स्टोरीज भी देखी कि किस तरह से हम खुद स्टोरीज बनाते हैं किसी भी चीज़ के अराउंड। तो हमने देखा कि हम अपने आप को, यानी हमारे इनर चाइल्ड को नॉन स्टॉप स्कोल्डिंग करते रहते, कुछ ना कुछ डांटते रहते हैं। अगर हम अभी भी कुछ नहीं कर पाते तो हम अपने आप को कितना कोसते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने जो बोला या समाज ने कुछ बोला, वो अभी हम खुद अपने खुद के पेरेंट बन जाते हैं। समाज ने या पेरेंट ने तो एक बार बोला होगा, पर हम तो अपने पेरेंट बन के अपने आप को बार बार बोलते रहते हैं वही चीज़, तो यू आर नॉट गुड इनफ और यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये चीज़ें इतनी चलती है कि हमें खुद को ऑटो पायलट पे ये चीज़ें चलती है, हमें पता भी नहीं होता कि हम इतना स्कोल्डिंग करते हैं अपने इनर बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को। तो ये आपको समझ के धीरे धीरे अभी आपको खुद को भी पता चला होगा कि जब आपने ये 7 डेज की प्रैक्टिस की, आपको खुद को पता चला होगा कि येस, आई वॉज क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम। सो लेट्स रीड फर्दर। So, way back in childhood, we began a war with ourselves and started criticizing ourselves the way our parents criticize us. You are stupid. You are not good enough. You don't do anything right. This constant criticism became a habit. Now, as adults, most of us either totally ignore the child within us or belittle the child in the same way we were belittled in the past. We repeat this pattern over and over. और कुछ पैटर्न्स बन जाती है हमारी, कई सारी पैटर्न्स बनी होती है और वो पैटर्न्स रिपीट होती ही जाती है। तो या लेट्स रीड फर्दर। Every time you feel scared, realize that it is the child within you who is scared. The adult isn't afraid, yet it has disconnected and isn't there for the child. The adult and the child need to develop a relationship with each other. How do you connect with your inner child? The first step is to getting to know the child through your mirror work. Who is this child? Why is this child unhappy? What can you do to help this child feel safe and secure and loved? यस, तो आज आप जो करने जा रहे हो, आज की जो प्रैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं पे आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन वापस बनाने में हेल्प करेगी। जो डिसकनेक्ट हो चुका है उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। और जब ये मिरर पर्सन इन द मिरर आपका फ्रेंड बन गया, फिर आपको सब कुछ वो मिलेगा, अपने ड्रीम लाइफ सब कुछ वो चाइल्ड के पास सभी क्वालिटीज़ हैं, उसके पास सभी पावर है। बिकॉज हमने उसको इतना दबा के रखा है, तो हमें अभी उस वो कहीं पे है ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं है।
क्योंकि हमारे माइंड ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। तो अभी आप जैसे जैसे कनेक्शन बनाओगे, आपको खुद को फील होगा अंदर से एक अलग तरह का पीस, एक अलग तरह की शांति, इतना ज़्यादा प्यार। ये सब चीज़ आप कर पाओगे जब आप ये चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओगे। और फर्स्ट स्टेप इज़ कि उसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। कैसे जानेंगे हम? मिरर में क्वेश्चंस कर करके कि कौन है ये चाइल्ड, कितना अनहैप्पी है। धीरे 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 नहीं, कहीं पे कभी कभी हमें अचानक से रोना आता है हम जब मिरर वर्क करते हैं, यानी दिस चाइल्ड इज एक्चुअली क्राइंग। तो अभी ये बच्चे को हम फील सेफ करवाने के लिए, सिक्योर फील करवाने के लिए या लव्ड फील करवाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, वो हमें आज पूछना है। सो लेट्स सी। Talk to your inner child about everything you do. I know it may sound silly, but it works. Let your inner child know that no matter what happens, you will never turn away from it or leave it, but will always be there for it and love it. हमेशा अपने इनर चाइल्ड को बोलना है कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे पास हूँ, और तू सेफ है। तो उसको सेफ फील करवाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपको डरा के रखा है, इसलिए ही इज नॉट फीलिंग सेफ टू कम आउट। तो अभी हमको उसको प्यार देना है, और जो डिसकनेक्ट हो चुका है उसको वापस कनेक्ट करना है। तो या लेट्स सी। All your inner child really wants is to be noticed, to feel safe, and to be loved. If you can take just a few moments a day to begin to connect with the little person inside of you, life is going to be a lot better. Let's affirm I'm willing to love and accept my inner child. आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। तो आप, हम सबको बोलना है आईने में देख के, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। ये बार बार बोलना है आपको। जितना आप मिरर में कनेक्शन बनाओगे, इतना ही ये जो पर्सन इन द मिरर है, इनर चाइल्ड है, वो धीरे 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 आपके साथ कनेक्ट होने का ट्राई करेगा। बट जितना आप उसको पूछोगे कि क्वेश्चंस, अभी हम देखेंगे जर्नलिंग में कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, तो जितने वो क्वेश्चन पूछते जाओगे आपको आंसर्स भी मिलेंगे कि तुझे क्या पसंद है, या तुझे क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है। तो धीरे 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 आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और जितना हो सके उतना उसके साथ आपको अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, प्यार करना है। तो योर डे 8 मिरर वर्क एक्सरसाइज, लेट्स डू इट, लेट्स रीड। Your 8-day mirror work exercise. First, find a photo of yourself when you were about 5 years old. Tape the photo to your bathroom mirror. Second, look at the photo for a few minutes. What do you see? Do you see a happy child? A miserable child? Third, talk to your inner child in the mirror. You can look at the photo or even look into your own eyes, whichever feels more comfortable for you. If you had a nickname as a child, use this nickname as you speak to your inner child. What works really well is to sit in the front of the mirror, because if you are standing, as soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out of the door. Sit down, grab a box of tissues, and start talking. Fourth, open your heart and share your innermost thoughts. Fifth, when you are finished, say these affirmations: I love you, dear. I love you, dear one. I'm here for you. You are safe. हाँ, तो अपने इनर चाइल्ड के साथ आपका जो भी पिक्चर है आपको लेना है आज, या तो वो पिक्चर के साथ भी बात कर सकते हो, या अपने खुद के आइज़ के अंदर भी आंखें डाल के बात कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो वो लेना है, और आप अपना निक नेम भी निक नेम से भी अपने आप को संबोधित कर सकते हो। फिर स्टार्ट स्पीकिंग टू योर इनर चाइल्ड।
देखो, आप जब पहली या दूसरी बार करते हो, आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप इनर चाइल्ड से बात करना स्टार्ट करते हो, आपके बच्चे का जो भी सैडनेस भरा होगा, कभी आपने उससे बात नहीं की इसलिए, तो तुरंत ही रोना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बराबर से बोला है कि सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। स्टैंड नहीं करना है आपको, सिट ही करना है। तो जैसे ही कोई अनईजी फीलिंग आती है, आपको जाना नहीं है, वहीं पे बैठ के उसका सामना करना है। जितना रोना आए है रोना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी, तो मैं यानी मैं जॉब पे चली गई थी सुबह, तो थोड़ा कुछ किया था मैंने, और फिर मैं आते टाइम पे मैं कार में देख रही थी आईने के अंदर। फर्स्ट टाइम मुझे इतना पता भी नहीं था कि नहीं मॉर्निंग में ही करना चाहिए, बट इट वाज ओके, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग ऑन माय ओन, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं कर रही थी, मतलब मैं देख रही थी शीशे में, जैसे ही मैंने इनर चाइल्ड से बात करना स्टार्ट किया, मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी अपने इनर चाइल्ड के साथ कहीं ना कहीं पे, अगर आप ये जो जर्नी है उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसका कारण यही भी हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड ने आपके आपके साथ कनेक्ट करने से थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा था, और आपने वहाँ पे गिव अप कर दिया। ऐसा हो सकता है। तो आप तभी कनेक्ट हो पाओगे जब इसको सामना कर पाओगे। अगर बैड इमोशंस आ रहे तो उसको आने दो, जस्ट आने दो, उसको बह जाने दो। और धीरे 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 जैसे ही आप अपने, अगर जो भी रोना भी आ रहा है पूरा कर लो, उसके बाद आपको खुद को एक अलग तरह की लाइटनेस फील होगी अंदर से। किस किस को ये पहली बार हुआ था जब आपने लाइटनेस, आई मीन जब आपने ये मिरर वर्क किया था डे 8 एंड डे 9, आपको कहीं ना कहीं पे बहुत लाइट लाइट फील हुआ था? किसी को है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, लास्ट टाइम वाला? मीन्स मॉर्निंग में करना है या डे टाइम? ये मॉर्निंग में ही करना है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप क्या पूछ रहे हो, मतलब एक्सपीरियंस मॉर्निंग का एक्सपीरियंस या डे टाइम का एक्सपीरियंस, आप नहीं, ऐसा पूरे पूछना चाह दिन रहे हो? का, पूरे दिन का एक्सपीरियंस ओके। कैसा था आपका पूरे दिन का एक्सपीरियंस? डिड यू हैव अ लाइक लास्ट, या लास्ट, कमिंग आउट? लास्ट मंथ, व्हाट सॉरी। हाँ, तो आप अगर इनर चाइल्ड से बातें करने जा रहे हो मिरर के अंदर, ये वाले हम्म डे 8 की प्रैक्टिस में, तो क्या हम्म आपको बैड हम्म इमोशंस आए थे, रोना आया था? या या जो फर्स्ट स्टेप है कि फोटोग्राफ लिया, फिर आप मिरर में देखो, फिर आपने मिरर में अपनी ओन आईज में देखो। सो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई ट्राइड टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुका, एंड आई वॉज crying, and then suddenly I like crying and giving smiling faces, and it's not a joke, like कैसे बात, it's true। यस। ऐसे रोते रोते फिर ऐसे हंसने भी हम वो में लगी थी। फिर I tried to stop myself, but I was like crying, like क्राइंग लाइक अ बेबी, जस्ट लाइक। हाँ यस। हाँ हाँ, मेरा कुछ चीज ले लिया हो और मुझसे छीन लिया हो, और मुझे like the same feeling that no one is loving me, and like sitting in a corner, and you know यस यस, और तो ये अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया ना, तो वो दिन याद आ गया कि मैं कैसे क्राई कर रही थी ऐसे फोटोग्राफ को देख के। I हाँ। started crying only। और पूरे दिन के बाद फिर कैसा फील हो रहा था? क्राइंग? Light, then it was light। लाइट, Then ओके। after that any activity I was not crying, like in any activity I didn't cry। ओके ओके। That day I cried, and after that I never cried like that, हम्म। looking myself in the front of mirror। Before यस। that also many times I used to cry looking myself into the mirror, but after this activity I never cried looking myself into the mirror। वाओ! सो आपके इनर चाइल्ड के अंदर का जो भी इमोशंस थे वो बाहर आ रहे थे, Yeah। क्योंकि अभी आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया, तो ही Yes। जो इनर चाइल्ड है आपका धीरे धीरे Mm-hmm। धीरे आपके साथ फेमिलियराइज हो रहा है, इसीलिए Mm-hmm। आपको बातें बता रहा है और जो भी इमोशंस है वो रिलीज कर रहा है।
तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि जितना रोना आता है रो लो, फिर उसके बाद इतना कचरा निकल जाता है, मतलब जो भी अंदर You की are feeling emotions light. निकल जाते, फिर बहुत लाइट फील होता है, लाइट एज अ फेदर फील होने लगता है, जैसे कोई वेट ही नहीं है बॉडी के अंदर। मुझे ऐसा फील हुआ Yes. था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप सबको भी Hmm. कैसा फील हो रहा है। सो Yes. पावर इज विद इन यू। The power is within you. Your day 8 journalizing exercise. First, for this exercise, you will need crayons, colored pencils, or colored felt tip pens. Second, using your non dominant hand, the one you don't write with, draw a picture of yourself as a child. Be creative. Third, tape the drawing to your bathroom mirror. Look at the picture and begin talking to your inner child. Fourth, ask your child fifth, ask your child the following questions and write down the answers in your journal. What do you like? What do you dislike? What frightens you? What do you need? What can I do to make you happy? Sixth, close your eyes and take a few minutes to reflect on what you have learned about your inner child. तो ये आपको ये प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्रेयन, ये जो कलर पेंसिल वगैरह लेके आपको लेफ्ट हैंड से, अपने जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके साथ आपको कोई भी पिक्चर बनाना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर बनाया था तो बहुत ही बुरा आया था, सेकंड टाइम थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, थर्ड टाइम और, तो आप ही देखोगे। और ये जो सेकंड ये इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या साइंस है, क्योंकि आप जब अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखते हो ना, वो सब कॉन्शियस से ही आता है। अपने डोमिनेंट हैंड से तो हम जो भी हमारा जो पैटर्न होता है, हैबिट होती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड की होती है। पर नॉन डोमिनेंट हैंड से कुछ भी करते तो वो सब कॉन्शियस से आता है, क्योंकि वो हमारी पैटर्न या हैबिट्स नहीं है, कुछ अलग है उससे। इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड से ही करना है, अगर आप राइट हैंड सब में ज़्यादा यूज़ करते हो तो। और जितना हो सके क्रिएटिव बनो। जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो आई सेट विथ माई सेल्फ एटलीस्ट फॉर एन आवर, आराम से मैं कर रही थी, अंदर से ही आता है कि अभी ये ड्रॉ करूँ, अभी ऐसा ड्रॉ करूँ, अभी इस तरह से करूँ, ये सब कुछ मुझे अंदर से आ रहा था। तो जब मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था तो मैंने स्किपिंग करते हुए अपने आप को ड्रॉ किया था अपने एक फ्रेंड के साथ। तो यस, मेरे इनर चाइल्ड को बहुत पसंद था दूसरे बच्चों के साथ खेलना बाहर, आउटसाइड। तो यस, आपको भी जो भी पसंद होगा आपका बच्चा ही आपको बताएगा। जैसे ही आपने करने जाओगे, धीरे 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 आप सब कुछ, यानी मैं उस टाइम पे मैं जब बैठी थी तो आई वॉज ट्राइंग टू ड्रॉ, मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मे बी आई लाइक द डांसिंग, तो मैं डांसिंग वाला पोज देने जा रही थी, पर अपने आप ही वो वाला निकल के आया, जैसे स्किपिंग रोप अंदर से ड्रॉ हुआ था। तो यानी आपका बच्चा ही आपको बताएगा कि एग्जैक्टली उसको क्या पसंद है। तो जितना हो सके आराम से शांति से बैठना और ये मेरा वर्क की जर्नलिंग करना। फिर ये सब भी आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछने, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक। तो हो सके तो इन मिरर के सामने फिर शांति से बैठ के ये क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या आपको डराता है, व्हाट फ्राइटन्स यू, क्या आपको चाहिए, व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, मैं क्या कर सकती हूँ आपको खुश करने के लिए। तो ये सब आपको धीरे धीरे आंसर्स मिलेंगे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो या लेट्स रीड अपना हार्ट थॉट फॉर टुडे। एक्चुअली लेट्स डू इट फर्स्ट। आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विथ लव। तो अपने दिल पे हाथ रख के बोले आईने के अंदर, आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विथ लव। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्यार से भेंटती हूँ, आई एम्ब्रेस। तो लेट्स रीड। Your heart thought for day 8. I embrace my inner child with love. Take care of your inner child. It is the child who is frightened. It is the child who is hurting. It is the child who does not know what to do. Be there for your child, embrace it and love it, and do whatever you can do.
to take care of its needs. Be sure to let your child know that no matter what happens, you will always be there for it. You will never turn away or desert it. You will always love this child. हाँ, तो अपने इनर चाइल्ड को आज आपको पूरा विश्वास दिलाना है कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे, कुछ भी हो जाए। यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर इट। कुछ भी हो जाए, आप कभी उसको टर्न अवे नहीं करोगे, कभी उसको बैन नहीं करोगे। यानी आज आज से आपको एक प्रण लेना है कि आप हमेशा अपनी खुद की यानी इनर चाइल्ड की नीड्स को, अपने खुद को इतना प्यार करोगे कि जो भी आप अंदर से आ रहा है, अगर मान लो कि इनर चाइल्ड ने बोला कि नहीं आज मुझे खेलने का मन है, तो मेक श्योर कि यू डू इट, क्योंकि ये बच्चे को खुश करना आपका मेन मकसद होना चाहिए। क्योंकि वो इतना डरा हुआ है, इतना हर्ट है कि आपको अभी उसके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए वो जो चाह बोलता है उसको करना है आपको। तो आज का मेडिटेशन देखेंगे, बहुत ही मस्त है मेडिटेशन। तो लेट्स डू। Let go and relax. Take a nice deep breath and close your eyes. Take another deep breath and allow your body to completely relax. Let your attention move to your toes and allow them to go completely limp. Now relax your insteps, your heels and your ankles. Let your feet become heavy. Allow this relaxation to move up your calves and into your knees. Continue to move this warmth and relaxation into your thighs, feeling them become heavier. Now let your hips and your buttocks relax. Allow your waistline to release and then feel the peacefulness move up into your chest, expanding through your collarbone and into your shoulder. Allow your upper arms to let go. Let your elbows relax. Let your lower arms, wrists, and hands relax. Let the past of the tension, let the last of the tensions move out through your fingertips. Let your neck relax and then your jaw, your cheeks, and all the muscles around your eyes. Let your forehead and scalp relax. Let go, let go, let go, relax. तो ये आपका आज का डे 8 का मेडिटेशन है। मोस्टली ये रिलैक्सेशन के बारे में है। ये आपको इसलिए रिलैक्सेशन करवा रहा है कि जितना रिलैक्स होंगे हम, वैसे भी आपको लाइफ में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आप देख रहे हो कि अपनी हार्ट बीट्स ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं पे फियर है या कोई किसी तरह की वरीज, चिंताएं आपको घेर रही है, तुरंत ही जैसे ही आप अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हो, धीरे धीरे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो ये रिलैक्सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज के दिन की ये प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि आप जब अपने इनर चाइल्ड से बात करते हो, ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं, बहुत सारा रोना धोना ये सब होता है। जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे, इतना ही आप अपने इनर से कनेक्ट होते जाओगे। इसीलिए आज की ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी कल हमारा वापस एक और दिन इनर चाइल्ड का पार्ट 2 होगा। तो आज आपको ये एग्जैक्टली करना है जो भी इन्होंने बोला है, कि जैसे आपको इनर चाइल्ड को विश्वास दिलाना है कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे। तो आज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ करना। उसमें ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा। वो जो जर्नलिंग की प्रैक्टिस है वो भी करना। आपको अपने बच्चे को जानने में बहुत मदद मिलेगी कि उसको कैसा क्या क्या पसंद है। तो या लेट्स डू इट। सो अभी हमारी मैजिक बुक है। आज भी इसमें भी हमारा चैप्टर सेम 27th डे पे। कितना कोइंसिडेंटल है कि मैजिक बुक में भी इनर चाइल्ड के डे पे ही ये प्रैक्टिस आ रही है, हमारे मिरर वर्क की प्रैक्टिस। तो आप देख पाओगे कि मिरर, यहाँ पे एक मिरर है और उसके आसपास इतने सारे स्पार्कल्स हैं। तो जैसे हमें रोंडा बर्न, वो भी हमें यही, इसके ये वाली जो हमारी प्रैक्टिस है इसके ऊपर ही आज
यानी ये लास्ट प्रैक्टिस होती है मैजिक बुक की। जैसे कल की प्रैक्टिस होगी कि हम यस्टरडे के उसमें से लेते हैं ब्लेसिंग्स, तो दैट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। बट ये जो मेन प्रैक्टिस है वो आज ख़त्म हो रही 27वें दिन पे, तो विच इज़ जादुई दर्पण, यानी मिरर वर्क के ऊपर ही हमें रोंडा बर्न भी छोड़ रही है। तो इसीलिए मिरर वर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब कुछ आप सबसे प्यार कर लोगे, पर जब तक आपने खुद से प्यार नहीं किया कुछ नहीं है। सभी जगह पे खालीपन है, एम्प्टीनेस है। जितना आप अपने आप को देखते जाओगे एक एक पावरफुल पर्सन की तरह, जितना खुद को देखते जाओगे, धीरे 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 जितना अपने आप से कनेक्ट होते जाओगे, वहीं पे पूरा जादू छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे खलील जिब्रान ने बोला है कि चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। यानी हमें बार बार पढ़ा के बाहर का जो भी है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जितनी से जादू और सुंदरता हम में होती है वही बाहर होती है। हमें लगता है कि बाहर में कुछ हो रहा है, ऐसा जादू या ऐसी सुंदरता, बट एक्चुअली बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे इनर में है। तो जितना हम इनर के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, इतना ही हम अपने आप से अपने बाहर के वर्ल्ड में वही चीज़ें ला पाते हैं। तो जितना आप अपने आप को खाली करते जाओगे, जितनी आपके बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिविटी है, जितनी भी खाली करते जाओगे अपने अंदर, उतनी ही जादू या ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड विल फॉलो यू, वो अंदर भरती जाएगी। जितना खाली करते जाओगे आप अपने आप को, जितना खाली करोगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपके अंदर भरती जाएगी, क्योंकि वो तो आपका ट्रू नेचर है। आपकी जो गुडनेस है वही आपका ट्रू नेचर है। अभी हम वो ट्रू नेचर से बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पे हमारा माइंड ने टेक ओवर कर लिया है। तो धीरे धीरे जैसे ही आप इनर के साथ कनेक्ट होते जाते हो, देखना बाहरी दुनिया में किस तरह से लाइफ इजी होती जाती है। तो लेट्स रीड। बतुल, आप रीड कर पाओगे या फिर किसी और को? सरिता जी, आपको रीड करना है हिंदी में? बिकॉज आई मैं थिंक पढ़ूं क्या? मैं अच्छा, पढ़ूं? विनोद जी आप करोगे रीड? हाँ, पढ़ेंगे। आप चलो, मौका देंगे तो जरूर पढ़ेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, स्टार्ट करिए। आपका जो मैसेज आता है उसमें टाइम नहीं होने से मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ओह मैंने सॉरी। तो मैं सोचा कि कोई आगे पीछे हो गया। अभी हमने कहा चालू करके देखते हैं, तो चालू देखे तो चालू है आप लोग का। खैर, मेरी भी मिस्टेक है, मुझे गलती हुआ मेरा। नहीं नहीं, कुछ जादुई नहीं, दर्पण हाँ, पढ़ूं मैं? टाइम होता तो आपको ज्यादा, हाँ हाँ पढ़, यहाँ से जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह से हम उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार, 1883-1931। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भागकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, और स्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके पास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से बदल जाता है, क्योंकि आप बदल गए। इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। ये गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीतों के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त देशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यस। तो ये जो माइकल जैक्सन का एक ये सॉन्ग था, मैंने भी वो सॉन्ग देखा था, जिसमें यही बात हो रही है कि
अगर किसी को बदलना है तो वो है पर्सन इन द मिरर। अपने अंदर यानी अपने छोड़ दो बंद करो आईने अपने। के पर्सन को जितना बदलोगे, आपका बाहरी संसार खुद ही बदल जाएगा। तो ये माइकल जैक्सन के सॉन्ग में भी है। ये सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था, मतलब बहुत ही करोड़ों लोगों पे असर हुआ था। आई थिंक ये सॉन्ग तब आया था जब कोई वॉर चल रहा था, आई थिंक वर्ल्ड वॉर या कुछ था, उस टाइम पे ये सॉन्ग आया था। तो उसने करोड़ों लोगों पे असर किया था, क्योंकि यानी ये चीज़ सबको याद दिलाना कि प्लीज़ बाहर संसार को बदलने का ट्राई मत करो, कुछ नहीं होगा। पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, और जितना करोगे इसमें कुछ हासिल भी नहीं होगा। स्ट्रगल स्ट्रगल में पूरी लाइफ निकल जाएगी। पर जैसे ही आप मिरर वाले पर्सन को बदलते हो, धीरे 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 आपका संसार अपने आप बदलता है बाहर। ये आप सब लोगों ने देखा कि जैसे ही आपने मैजिक बुक स्टार्ट की, जैसे ही आपने धीरे 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 अंदर के पर्सन को देखा, अंदर की चीज़ों को बदली, आपके साथ के जो लोग जुड़े होंगे उसका उनका व्यवहार आपके साथ बदल गया। आपने देखा आपके मनी के मामले में बहुत कुछ बरकत होने लगी। आपने देखा कि आपको खुद को अंदर से एक अलग तरह की शांति, अलग तरह की खुशी महसूस होने लगी। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि आपने अपने आप को इनर से बदलने का अनुभव किया। तो जो भी है दर्पण में ही होता है सब कुछ। तो लेट्स, हाँ विनोद जी आप रीड कीजिए, और थोड़ा सा धीरे धीरे जाना। इसको थोड़ा सा लार्ज कीजिएगा, थोड़ा पतला आ रहा है हाँ ये, लार्ज करती हूँ, हाँ हाँ। थोड़ा सा। अभी दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ हाँ। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आप इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और सपनों, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह तो आप स्वयं ही हैं। हाँ, जब तो आप अभी दर्पण तक में दिखने हमने वाले व्यक्ति के, यस, हाँ, अभी तक हमने सबके लिए कृतज्ञता की। इतने सारे लोगों के लिए हमने किया। हमने फिर अपने यानी ये सब कुछ किया, अपने सपने भी लिखे हमने। उससे पहले हमने यही कृतज्ञता की कि बचपन से लेके आज तक हमें जो चीज़ें मिली, जो जो सपने, आई मीन सॉरी, जो पैसे हमें दिए गए उसके लिए हमने कृतज्ञता की। हमने लोगों के लिए कृतज्ञता की, लोगों को भी हमने। तो ये एक बात भी आपको समझनी है कि जब आप ये हमने मैजिक डस्ट किया, हमने ब्लेसिंग्स दी, हमने मैजिक वॉन्ड किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। जब आप पहले से अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं पे ईगो होता है। पर धीरे 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 बाहर की दुनिया में आपने धीरे 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 कदम रखा, कृतज्ञता की, धीरे धीरे आपको पता चला कि हाँ, जब भी मैंने किसी और के लिए कृतज्ञता की तो मैं अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देख रही हूँ। जब लाइक हमने डिफ़िकल्ट पर्सन के लिए जब किया था तो हमें पता चला कि आप खुद बदल रहे थे अंदर से थोड़ा थोड़ा। आपको खुद को एहसास हुआ कि हाँ, मेरी सोच में ही मुझे बदलाव लाना था। तो ये सब कुछ करने के बाद अभी जब आप मिरर वर्क करते हो तो ये अहंकार से नहीं होता है। ये होता है आपका प्यार, कहीं ना कहीं पे प्यार की वजह से आप कर रहे हो मिरर वर्क। अगर आपने ये मैजिक बुक एक बार भी नहीं करी होती और मिरर वर्क करने जाते तो आपको खुद को पता भी, यानी आपको चलेगा जो डिफरेंस है, आपको पता चलेगा। अगर जो लोग कभी कभी आते हैं जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की और डायरेक्ट मिरर वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा आगे टिक नहीं पाते। उसका भी कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं पे मैजिक बुक से आप जो अंदर थोड़ी थोड़ी सी हमारी जो चेंजेस आते हैं अपने अंदर, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं जब हम मिरर वर्क करते हैं। तो इसीलिए मिरर वर्क इज़ द मेन प्रैक्टिस। सब कुछ करने के बाद
अभी जो कृतज्ञता के मेन हकदार हैं, यानी जो अगर कृतज्ञता की सबसे ज़्यादा किसी को हक है तो वो आप स्वयं हैं। तो अपने आप को आज आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना है, शुक्राना करना है कि आप ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो। कोई भी उम्र हो या जो भी हो, आप अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जितना हो सके अपने आप के साथ आप टाइम ज़्यादा बिताते हो और जो कुछ करना पड़ता है करते हो। तो दैट इज़, आप अपने खुद की कृतज्ञता के बहुत ही बड़े हकदार हो। तो या लेट्स रीड फर्दर। हाँ विनोद जी, आप रीड कीजिए। हाँ, आप अपने परिवार और मित्रों, अपने काम काज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक जब आप दर्पण यहाँ से ना जब आप दर्पण में हाँ। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाती है। और उसके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टि गायब, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। यदि आप जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। ये ये चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ, यानी जब आपके आप खुद के साथ आपका जो भी रहता है, अगर खुद के साथ का आपका अनुभव हमेशा खराब, मतलब बचपन से ये सब भावनाएं हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं हमेशा डिसअपॉइंटेड वाली भावनाएं, कि हमेशा अपने आप के साथ डिसअपॉइंटेड रहना कि यार मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो ये भावनाएं आप सभी जगह पे अपने साथ लेके जाते हो, और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि ये मेक श्योर करेगी कि वही असंतुष्टि, वही असंतोष, निराशा हमेशा आपके साथ रहे। तो मेरा वर्क में हम यही कर रहे हैं कि अपनी जो भी असंतुष्टि वाली हमारे अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है, जो जंक है, अभी हमारी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब हम निकाल रहे हैं मिरर वर्क के थ्रू, जो हमें लुइस है सिखाते हैं। तो यहाँ पे भी रोंडा बर्न सेम बात कर रहे हैं कि जो भी अंदर होगा वही बाहर होगा। लेट्स रीड। पढ़ो। हाँ हाँ जी, पढ़िए। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और बेहतर महसूस कराती हो। जब आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है उससे वह भी ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से दादुई सब धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें से अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ, तो अपने आप को, स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं के लिए जितना हो सके इतना धन्यवाद करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें रोंडा बर्न भी बता रहे हैं। अब तक हम अपने आप को कितना कोसते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अभी जितना हम अपने आप को प्यार करते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे, इतना ही हमारा बाहरी संसार बदलते जाता है। तो आज आपको अपने आईने में जाना है। आज की ये जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है, उसके लिए भी आपको यही करना है। वैसे तो हम मिरर में भी आज हमारा इनर चाइल्ड को हम करेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। तो वहीं पे आज की ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस के लिए भी आपको खुद को जितना हो सके धन्यवाद बोलना है। अपने खुद के लिए एक प्राउड फील करना है कि हाँ तूने अब तक जो भी किया बहुत ही
प्रशंसा के लायक है। तो लेट्स रीड फर्दर। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण की ओर देखें हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द और जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जानिए जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियां, जरा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। कितना जबरदस्त है। जितना बहुत आपने जबरदस्त। अपने दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लिया, समझ लिया कि यही पर्सन है जो मेरे सब सब चीज़ों में मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, पूरी लाइफ मुझे ये अच्छी राह पे चलाने वाला है। तो जो भी आपकी आलोचना होगी या जो भी होगा, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है और आप एक बहुत ही कृतज्ञ पर्सन यानी ग्रेटफुल पर्सन बन जाते हो। तो आज की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। आपको मिरर में जाके अपने आप को धन्यवाद देना है। अभी हम तो मिरर वर्क कर ही रहे हैं, तो वैसे भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो भी आपको ये करना है, अपने आप को आई लव यू बोलना है मिरर के सामने। जितना हो सके कृतज्ञता। आज आप 3 चीज़ें भी बोलना कि क्यों आप कृतज्ञ है। ऐसी कोई भी 3 चीज़ें बोलना आईने के सामने कि क्यों आप कृतज्ञ हैं। तो दैट्स इट। सो लेट्स रीड अवर अभ्यास क्रमांक 27। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें और इससे पहले कि कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप उनके बारे में कृतज्ञ है जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। सही ना? सही है, सही। चौथा, आज रात सोने से पहले ठीक अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा रीड किया विनोद जी, एक्सीलेंट। नहीं, आपने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन वो बताया ना, थोड़ा गाइड करने से थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं झूम में मैं भी एक बार आऊं। हल्का सा मेरे मन में 5% का विचार आया है, तो कहीं ना कहीं आदमी चेष्टा करने से कुछ होगा ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुधान। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया रीड किया बतूल ने भी और आपने भी। बतूल जी का तो मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। नहीं रियल में नहीं, उनका आपने भी मुकाबला नहीं हिंदी है। में मुकाबला तो सही ढंग से किया आपने भी। बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा रीड किया। परफेक्ट रीड किया। मैं मैंने आपको आज एक मैसेज दिया है, यदि पॉसिबल हो तो 15 मिनट का थोड़ा सा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आप कर सकते हो। बात है, आप। हम लोग आपस में ही करेंगे 3 जन। मैं हाँ वाइफ के साथ करना चाहता हूँ 10 मिनट हाँ के हाँ, लिए। ठीक ठीक। है। ये डोली जी दिल्ली से बोल रहे हैं क्या? सॉरी, मैं जानता हूँ डोली जी आते हैं वो सेशन में, दिल्ली से अच्छा है अच्छा। वो आने का शायद वही है। हाँ तो आप अगर शेयरिंग है तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी अ, यानी हो गया ना, हमारी दोनों बुक्स हो गई, तो आप शेयरिंग कर सकते हो अभी अगर आपको करना है तो। थोड़ा पर्सनल था मैटर, इसलिए कर ओ सकते हैं अच्छा। यहाँ भी।
अच्छा अच्छा, यानी जूम सेशन पे नहीं करना है। जूम ओ, में मैं चाहता हूँ, जूम में रहने से थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट आता है। अच्छा सेशन अच्छा। के बाद में यदि होगा तो एक बार फिर जुड़ जाएंगे 2-5 मिनट के लिए। ओ, ओ, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे मैंने जो शेयर किया था और आपने मुझे जो सलाह दी थी, वो हाँ सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई। और रियल में मुझे ये समझ में आया कि मैं गलत न था, मैं गलत था, उसको स्वीकार करने में कोई के सामने भी मुझे तकलीफ नहीं है। और उसको मैं सुधार लिया मैंने, तो मैंने अभी काफी हद तक मैंने सुधारा है। और रियल में उससे मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलती था। और दर्पण का जो वर्क है, अभी मेरे साथ में क्या हो रहा है कि मैं भीतर से बहुत कॉन्शियस हूँ और मैं मन से जो करता हूँ ना वो बहुत अच्छा होता है, परंतु ऊपर से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है वो, कि जैसे दर्पण के सामने जाके करना है या भीतर से, तो उसमें फर्क आता है थोड़ा सा। हाँ। इसका पहले उदाहरण ये है कि परसों मेरी बहू ने वहां से कनाडा से एक मैसेज किया था मुझे। बोले पापा मैं जो काम में लगी हूँ, मैंने उनके लिए पहले किया था विजुअलाइजेशन, मैं आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ। और ये विजुअलाइजेशन रश्मि जी की क्लास में किया था और वो मेरे साथ कंप्लीट हुआ, तो उनको वहाँ पे एचआर का जॉब नहीं मिल रहा था कनाडा में। तो मैंने विजुअलाइजेशन किया कि उसको मिल गया मिल गया मिल गया, और इतना अच्छा जॉब मिला वो, और टीसीएस के अंदर में मिल गया, और टीसीएस वाह। कनाडा की कंपनी में मिल गया उसको। और अच्छे $70,000 पैकेज में मिला उनको अरे वाह। ईयरली। तो अच्छे से वो कर रही थी, उसमें 6 महीना उनको हो भी गया। अच्छा, 6 महीने के बाद में कोई वहां से उनके पास ये मैसेज आया कि उनके जो हेड है बॉस ने उन्हें कहा कि भाई आपका आगे में हम लोग अभी 6 महीने के बाद परमानेंट का नोटिस आ जाता है, तो परमानेंट का उनका आने का था, वो नहीं आया। बोला आप अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो मार्च तक तो, और उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम्म। उसने मुझे मैसेज किया, कारण हर आदमी को अपनी खुशी अच्छी प्यारी लगती है, और मैंने उसके लिए किया, ये उसको मालूम था। और विजुअलाइजेशन किया, तो पापा मेरे लिए आप विजुअलाइजेशन करो कि मेरा जॉब परमानेंट हो जाए। अरे वाह। तो ये इतनी बड़ी मेरे को जो खुशी हुई, मैं जॉब मिलने से बेसी खुशी हुई कि उसने मुझे इस लायक समझा। तो वाह। बोले कि मैंने उसको कहा कि मैंने ऐसे रश्मि जी की क्लास में भी कहा कि जादुई धूल छिड़कने के लिए सबको, आपको भी बोलता हूँ और यहाँ जो उपस्थित है सभी को यह बोलूंगा, जादुई धूल बहुत काम करती है। तो जादुई धूल सभी छिड़किए जिससे कि मुझे फायदा मिले और मेरी बहू को भी उसका बेनिफिट मिले। होना तो वही है, हो विधि राम रचि राखा, परंतु विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो उसने कहा कि पापा आप सब जगह, उसको थोड़ा सा वो रिजर्व माइंडेड आदमी है, बच्चे आजकल के नए जमाने के हैं ना, तो बोला आप नहीं बोल करके आप अपने मन से करो, तो मुझे आपका उसका बेसी विश्वास है। फिर भी मैंने आपसे विश्वास बेसी है मुझे आपको क्लास में और उनके क्लास में। तो मैं शेयर करने से मुझे अच्छा लगता है कि शेयर करने से वो बात और स्प्रेड होकर के उसका बल्ब मिलता है कि एक आदमी कोई प्रे करता है और 10 आदमी करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। यानी आपके विजुअलाइजेशन में और आपके मैजिक डस्ट में इतनी ताकत है कि किसी और के भी उसमें बदल सकती है। पर आपको धीरे धीरे पहले अपने आप के अंदर ये पावर भरना होता है। तो हाँ जैसे आपने आपकी वाइफ के साथ का भी जो था, आपने मेरे साथ शेयर किया था, और जो भी आपने उसको भी समझ लिया, तो आपका एक अलग तरह का लेवल हो गया। आप अब अपग्रेड हो गए उस लेवल में भी। अभी आपका पावर भी बढ़ता जा रहा है और वो पावर अभी दूसरों के लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे तो मैंने लिखा सो उसके लिए मैं अमेजिंग। गुजार हूँ मेरी बहू अंजलि को, जो टाटा कंसल्टेंसी में सेवा के लिए स्थायी रूप से काम कर रही है और उसे $70,000 का वार्षिक आमदनी देता है। वाह ये तो कमाल हो गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वाह। टाइप से मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ कि भाई जो परमानेंट जब वो सोच रही है वो हो गया उसका। तो मेरी विजुअलाइजेशन करेक्ट मिलती है। और मैं जैसे जैसे सोच रहा हूँ मेरे अपने लाइफ में भी, जैसे मेरा टारगेट है, गोल है, वो गोल गोल सभी पूरा होता है, टाइम लगती है उसमें। देखिए 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। यस। मेरा नेक्स्ट विजुअलाइजेशन यही है कि नेक्स्ट जाड़ेगी तक, मतलब मार्च तक मैं कनाडा पहुंच जाऊं और वहां जाके बच्चों के साथ में रहूं 1-2 साल। अब उसमें थोड़ा सा ये है कि बच्चों के साथ वहां पे रहूं या आना जाना रखूं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस रहता है। उसके करेक्शन विजुअलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए। मैंने आस्टिन मैन की क्लास में भी किया था, तो उन्होंने कहा कि आप तो एकदम बढ़िया बिस्तर बांध करके चले जाओ वहां पे और एकदम विजुअलाइजेशन करो कि हम तो वहां पे उनके साथ रह रहे हैं। परंतु वाइफ का कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक कोना अटकता है कि यहाँ पे मेरी 3 लड़कियां हैं जो इंडिया में रहती हैं, तो बच्चों के प्रति स्नेह रहता है, वो रहता है। और पीछे मेरे साथ में मेरी सिस्टर जो है, उसका एक मेरे पर दायित्व तो बहुत बड़ा हो गया। वो अनमेरिड है और मेरे से 3 साल बड़ी है, 70 साल की उम्र है उसकी।
तो उसका मेरा व्यवहार है कि पहले मैंने उसको जब कनाडा गया था तो आश्रम में दिया था, और वहां पे परंतु वो ठीक से थी, परंतु दवाई बंद कर दी। दवाई बंद करते ही इस मेडिसिन के अंदर में वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं रहता है। तो कोई दूसरा आदमी तो बर्दाश्त नहीं करेगा, घर वाले तो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे वापस लाना पड़ा। 6 महीने से हमारे घर में है, और घर में होने से थोड़ा सा घर का वातावरण असंतुलित हो, और आपने उसका मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि आप गलत कर रहे हैं, वाइफ आपकी गलत नहीं है। उनका जो क्रोध है तो वो ठीक है, उनके साथ जो हो रही है तो उसके लिए वो बोलते हैं ठीक है। जो दिन भर काम करता है और उसके साथ कोई गलत होता है तो उनका क्रोध आना स्वाभाविक है। मैं जो क्रोध करता हूँ उनपे, ये मैं गलत करता हूँ। आपने मुझे समझाया था, और ये मतलब इतनी क्लासों में पहली बार आपने इस तरह से समझाया मुझे। मैं आज तक अपने आप को ही सही समझता हूँ, अपने आप को कहीं गलत नहीं समझता हूँ। ये मेरे में एक हल्का सा ईगोनेस है कि मैं हर समय समझता हूँ कि आई एम द राइट पर्सन, आई एम द राइट, और मैं जो बोलता हूँ वो सही है, सामने वाला गलत है, और उसको सुधारने की चेष्टा करता हूँ। उसमें मेरा मोटिव यही रहता है कि वो उनसे मैं बेसिक प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती नहीं करे, परंतु ये गलती सुधारने का ये तरीका नहीं है। ये आपने मुझे समझाया। मेरी वाइफ भी बात करेगी, 2 मिनट आइए। हाँ हाँ। 1 मिनट बैठाता हूँ। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो आप सुनाइए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। अभी वहां तो सुबह हो गया होगा ना? हाँ, अभी यहाँ पे सुबह 6 बजे है। 6 अच्छा बजे अच्छा। है अभी। हाँ हाँ। और बस यही वो कर रहे हैं, क्लास बढ़िया। बस एक वो मेरी ननद को लेकर बहुत टेंशन रहता है माथा में। वो क्या, सही नहीं है दिमाग, न नहाती न धोती, गंदा काम, एकदम विचलित हो जाते हैं हम लोग उसको देख देख के। अरे हम बोलते हैं भगवान को यहाँ चाह नहीं तो उसके वहां भी चाह नहीं है। उसकी देखिए, उसकी यहाँ कोई सी को चाह नहीं है। हमारे फैमिली वाले बहुत, तो कोई 1 घंटा भी नहीं बुलाना चाहता है, मिलना चाहता है। अरे ये तो ठेका ले रखे, बोला हम तो रखेंगे, उपाय नहीं, आश्रम में भी जाएगा नहीं सब देके आ कुछ। रहे हैं। बस आपको कोई भी सिचुएशन होती है भगवान ने दी है, उस तरह से हमें एक्सेप्ट करनी होती है। अब वो तो कर ही रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो करते आज 25 साल हो गया उसको। हम्म। 25 साल से रख रखे इस दिमाग में। सही दिमाग का आदमी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वो अपना भाग का खाता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना साफ सुथरा रहे, अपना खुद का शरीर का काम खुद कर ले, नहाना धोना हम्म। कुछ भी नहीं करती है अपने आप। तो बस आपको यही देखना है कि कहीं ना कहीं पे हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई सिचुएशन मिलती है। जैसे ही मन के अंदर पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर लोगे, कहीं ना हम्म कहीं पे बाहर तो आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, करना पा भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा हम्म बहुत कर भी रहे हो, पर हम्म अंदर से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है हमारी। जैसे ही हम्म। एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत ही फर्क पड़ता है लाइफ में। वो चीजें तो अपने सही। आप टेकन केयर करता है यूनिवर्स, यानी जो भगवान होते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक्सेप्ट स्वीकार करना है। स्वीकार तो स्वीकार ही करना करना है ही बस। तो जितना स्वीकार करते जाएंगे, सब कुछ वो संभाल लेगा, सब कुछ संभाल लेगा। वो तो संभाल ही रखे वो हैं। तो संभालेगा। तो इनको उसने बोलते पैदा मेरा किया कर्म है। का भोग है, जो हम भोग रहे हैं साथ में, ऐसा हाँ। नहीं क्या? उपाय भी नहीं है। कभी तो हम विचलित हो जाते हैं देख के, हम दिमाग के मेरे को क्या पाप किए तो हमको ऐसा सा संग मिला साथ में, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। पाप पाप कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं है। अगर कोई परिस्थिति हमें देता है भगवान, उसको जितना हम रेजिस्ट करेंगे, मतलब जितना हम अस्वीकार करेंगे ना, उतना ही हम्म ज्यादा आकर्षित करते हैं हम उसको। हम्म और वही परिस्थिति, इसीलिए अगर हम पहले से ही अगर स्वीकार कर लेते कि कभी कभी किसी के बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, वो हम्म बच्चे भगवान का रूप होते हैं हम्म एक्चुअली। ये बात जब ये समझ लेते, अगर उसको दो तरीके से लिया जा सकता है। उसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि ये बोझ है हमारे ऊपर, तो हमें उसको हम्म इतना कुछ करना पड़ता है। पर अगर उसको ये तरीके से ले लेके, तो भगवान का रूप है। उसको हम्म अगर भगवान ने ऐसा बनाया है तो उसके पीछे कोई कारण है। और अगर उसको मेरे लाइफ में दिया है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। जैसे ही ये कारण हम समझ लेते हैं, तो वहां पे बहुत ही अलग तरीके से चीजें बदलने लगती है। सही बात है।
तो ठीक बोल इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितना हो सके भगवान की कोई भी चीज़ को क्वेश्चन ना करे कि क्यों है, मेरी लाइफ में क्यों है। अपने नसीब को ना कोसे, कुछ नहीं, भगवान को भी ना कोसे, इतना समझ एक्सेप्ट कर नहीं ले। आता ना, पिछले इतना समझ नहीं आता, क्रोध भी आ जाता है और इतना समझ नहीं आता है। हाँ नहीं, इतना ये समझ धीरे आ धीरे जाए तो हम प्रैक्टिस लोग तो की बात चेंज हो होती है। जाएंगे। जैसे विनोद जी ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं, आपको भी प्रैक्टिस चालू करनी है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। ठीक जितना ठीक। आप ग्रेटिट्यूड मतलब जितना कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, इतना ही वो सब चीज़ों में फर्क मैं पड़ेगा। जितना करता हूँ मेरे से बेसी ये करती है हमको और ये मुझे याद एकदम भी दिलाती है। पसंद नहीं है, एकदम अच्छी खाली नहीं वहीं पर लगती है। जाकर के इसका थोड़ा सा पेशेंस है जो कहीं ना कहीं वो जवाब दे शुरू जाता है। से मैं शादियों का ही नहीं, जब से मेरे पीछे वैसे करती है। इसीलिए नहीं, जितना आप एक्सेप्ट स्वीकार कर लोगे, तुरंत ही ये चीज़ें आपकी लाइफ से कंप्लीटली चली उसका जाएंगी। नेचर ना बहुत गंदा है, चोरी करना, झूठ बोलना, वो सब हमको पसंद नहीं, सब करती है वो, इसलिए अभी मेरे आप बाहर ही नहीं। देख रहे हो, अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। सही बाहर भी, कुछ नहीं चेंज होगा, अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। सही आज बात के है, चैप्टर सही में बात। भी हमने पढ़ा। तो बाहर हम्म, कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। पहले ठीक। अभी मैजिक बुक को परफेक्टली करना स्टार्ट करो, फिर अच्छा धीरे अच्छा धीरे अच्छा। धीरे आपको ये सब चीजें भी मैं आपको पर्सनल में करती हूँ। आ जाएगी। हाँ, मैं आपको आज तो मैं अभी बस निकल रही हूँ। मेरी बस है अच्छा। अभी तो थोड़ी देर के बाद। तो मैं सॉरी। कहीं और सिटी में जा रही हूँ बस लेके, तो मैं हाँ, होगा तो बस में आपके साथ बात करूंगी, मैं फोन करूंगी बस से। ओके ठीक ओके। है? तो मैं थैंक थैंक आपके यू। यू, साथ थैंक और यू थोड़ा आपको समय देने ज्यादा के लिए, डिटेल में थैंक यू। बात थैंक यू थैंक यू। करूँ। हाँ आपके हाँ, टाइम लिए बहुत। अलिफिया, मुझे आज जर्नलिंग एक्सरसाइज में क्या करना है वो मुझे थोड़ा से जल्दी से शॉर्ट में बता दो। हाँ, मेरा वर्क का ना। हाँ हाँ, तो उसमें आज कुछ नहीं है, देखो वहां पे कोई कोई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उससे हाँ, तो पहले वही आपको। हाँ क्वेश्चंस का ही पूछना था, व्हाट यू डिसलाइक, तो उसमें क्या लिखना है? मतलब अभी मुझे जो नहीं पसंद है कि वो जब जब मैं बच्ची थी तो जब मुझे क्या नहीं पसंद था, मतलब क्या हाँ, लिखना है? बच्चे। तो जैसे मिरर मैं के ना, सामने बैठना, ये पहले तो हाँ ये वाला करना, जो ड्राइंग का मुझे काम क्या, है। हाँ वो कर लिया मैंने अभी। अच्छा कर लिया, ओके ओके। वेरी नाइस, अब बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। तो तो वो करने के बाद मिरर के सामने खाली शांति से बैठना, एकदम रिलैक्स हो जाना। बराबर ओके। है, रिलैक्स होके मिरर के सामने बैठना। और जो भी अगर कोई इमोशंस भी आ रहा है तो उसको भी निकाल दो, शांति से बैठो। और फिर मिरर के सामने ही आपको पूछना है कि तू मुझे बता, तुझे क्या पसंद है। फिर जर्नलिंग करने बैठना, कुछ ना कुछ अंदर से आएगा, कुछ ना कुछ अंदर से। नहीं तो ऐसे मतलब खाने पीने का, तुझे ये पसंद था खाना, तुझे ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद था, ऐसे सब लिखना है? हाँ हाँ। सपोज बट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लव ड्राइंग, लेकिन अभी ये सब पूरा लाइफ में अभी मुझे ना ड्राइंग से मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना, माय ड्राइंग इज वेरी गुड एंड आई यूज्ड टू लव लाइक एनीथिंग, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो ऐसे लिखना है? अच्छा तुझे ड्राइंग करना पसंद था, हाँ लेकिन मुझे तो नहीं है, ऐसे लिखना है क्या? नहीं, ऐसा लिखना नहीं है, आपको बस अच्छा मिरर के अंदर ही पूछना है। अगर अंदर से जवाब आता है कि हाँ ड्राइंग पसंद है, तो वो लिखना है। और अभी नहीं पसंद है या ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है। आपको बस अपने अच्छा इनर चाइल्ड को पूछना है उसको क्या पसंद है, और वो ही लिखना है। कौन सी चीज से उससे डर लगता है तो वो भी आपको पता चलेगा, वो बताएगा। धीरे 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 आपको अंदर से ही आएगा आंसर। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था तो मुझे याद है कि फ्राइटनिंग में मैंने कुछ लिखा था कि कौन सी चीज़ से आपको डर लगता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आंसर आया था। उस टाइम पे मैंने लिखा था क्या पसंद है, तो क्या खाना पसंद है या क्या करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें भी, जैसे ये स्किपिंग रॉप करना पसंद है, वो भी आंसर आया था। फिर तो उसको लिखना कैसे है कि अच्छा तुझे ये पसंद है, लाइक दिस वी हैव टू राइट, आई मीन हाउ वी हैव टू नो राइट? नो नो, ऐसे चाहे आपको अपने हिसाब से ही लिखना है कि हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ये था नहीं, अच्छा मतलब मुझे ये पसंद है, मुझे फ्राइटन क्या करता है, तो मुझे क्या क्या, इस तरह से ही लिखना है। पर आपको अपने अपने इनर चाइल्ड की ओके तरह आपको देख के उसके बारे में लिखना है। ओके ओके ओके, या थैंक यू। Okay, so we will skip the meditation today because I have to leave within 15 minutes. आज मैं दूसरी सिटी में जा रही हूँ तो इसीलिए, तो we will skip the meditation and You are on a trip? You are हाँ on a trip? You are on a trip? हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे हाँ, डेलिस टेक्सास आई हुई हूँ। अपनी अच्छा बेस्ट फ्रेंड के घर पे आई थी, वो वहाँ पहले रहती थी, अभी वहाँ पे यहाँ पे मूव हो गई।
तो मैं इसके घर पे आई हूँ अभी, अपने कजिन के घर पे जाऊंगी, यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है। Okay. हाँ तो Okay. Yeah. अभी Enjoy बस yourself. पकड़ के, हाँ वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वहां से फिर फ्लाइट पकड़ के फिर वापस घर पे जाऊंगी 3-4 Okay. दिन के बाद। तो मैं Okay. Bye. 8-10 दिन की ट्रिप पे आई। बबीता जी पूरा मैं पूरा करते हैं, आपका काम करते हैं, मतलब जितनी है ना फॉलो करते हैं बबीता जी, मैंने देखा है उनको। हाँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Love, थैंक light, यू, and abundance to all of you. See you all tomorrow, once थैंक again at the same time. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.